सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HR के स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। Hello, I am Abu Huzaifa and you are watching HRK Studio. We have one scholar from Jawaharlal Nehru University from Geography Department. We will discuss about how to prepare for JNU MA MPhil entrance in Geography subject. Please give your introduction to the audience so that they can know about you. So myself, Mehboob Rahman. I'm pursuing my PhD in CSRD, Center for the Study of Regional Development. As my friend said that this is all about the geography, but Center for the Study of Regional Development is a multidisciplinary center. So it has three subjects: geography, population studies, demography and economics. So we'll today discuss about geography and little bit about population studies and demography. So this is the final year of my PhD, and I taught graduation and MPhil and MA level as a teaching assistant in the center. So probably it will help you to understand how to crack the JNU entrance. So this was the introduction of the scholar. First of all, I want to know the people who are preparing for JNU. Could you please explain syllabus of geography MA or MPhil so that they may, if they don't visit the JNU website, they may get help from. Okay, so for the wider dissemination, I will use Hindi and English, alternate language, as you said, as you asked. So for this, now I'll start by saying that now we have changed the pattern of examination. So I'll start by saying the changing pattern of examination. So first we had the examination question pattern like the subjective and MCQ earlier. Now we have only MCQ, multiple choice question. So earlier we had around 10 question of subjective and remaining 20 or 15 question on MCQ. So जो बात यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, वो सब सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, ओनली क्वेश्चन पैटर्न में चेंज आया. अब क्वेश्चन पैटर्न में ये सोचने का ज़रूरत नहीं है कि पहले सब्जेक्टिव था अब MCQ हो गया तो ऑल टुगेदर डिफरेंट कुछ आ गया, ऐसा कुछ नहीं है. MCQ में वही चीज़ आएगा जो पहले आती थी, लेकिन शॉर्ट टर्म में शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा. इसमें और एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, पहले सब्जेक्टिव में थोड़ा सा कॉन्फाइंड था एरिया, बट ऑब्जेक्टिव में और ब्रॉडर एरिया हो गया. सो हम लोगों को वी शुड बी वेरी केयरफुल when we prepare for this entrance. We should touch each and every aspect and theme of the particular subject. So those who have not seen the syllabus, I'll discuss little bit about the syllabus. So first I'll discuss about MA and then MPhil and PhD. So MA we have 100 marks. So in the examination, entrance examination, and it has 4 unit. First unit will have 40 marks, and that will include the geomorphology, basically the physical geography, and other part also. Physical geography includes the geomorphology, climatology, oceanography, biogeography, human geography, economic geography, political geography, population geography, and so on and so forth. And second, the regional geography of India, because as I said that this is the regional Center for the Study of Regional Development. So we in this center, regional development one of the focused area. So we should be very careful when we will prepare for this exam. So regional development means a physiological division pattern of development of the different region of India, agriculture development, industry development, growth of the population, urbanization and socio-cultural development. And another aspect
that is the most important thing here is the GIS and remote sensing. GIS, we know that this is the burning, this is the growing subject matter in the geography and the development sector. So GIS and remote sensing, and another the cartography and statistic, little bit statistic. And unit 2 will cover the physical, human and human geography in terms of Indian context, with the reference of Indian context. And it will carry 20 marks. And third unit, that is a question that will that includes the cartography, scale, map projection, topographical map of India, method of data representation. And fourth unit will is on statistical method. This is basically the descriptive statistics, mean, median and central tendency basically, and the correlation. And these are the 4 parts we will cover. So this is the very detailed syllabus you have discussed with us. First of all, the nature you already told that has been changed. So is the pattern to prepare how we approach the MCQ question in the geography subject, because the subject is very vast and as you said and in syllabus as well. तो then what you suggest to the people, और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका सजेशन क्या होगा, कैसे तैयारी करें उसको, इनको कैसे कवर कर सकते हैं? ओके मैं थोड़ा डिटेल भी दूंगा, लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूँ, दिस इज द आई थिंक टुडे इज 27, I think today is 27, so we'll have very little time. So if I suggest lots of reference, 28, today is the 28, so if I suggest lots of books and materials, and it will be very difficult to cover all the things. So but I'll tell the reference book and the textbook what should be followed, but just try make your plan accordingly whether you will complete the whole thing or not. But I'll tell little bit about the short period, what do you say, last minute suggestion I'll say. Okay, so first of all, as I said, different part of geography, the subject of geography, different theme of the geography. So first I'll say that for the geomorphology, what you actually follow, mostly the Indian university जो syllabus follow करता है, हम लोगों को वही syllabus ज़्यादातर follow करना चाहिए, because यहाँ पर भी वही syllabus follow करके होगा. तो और मैं broadly point out कर दे रहा हूँ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट मैटर के लिए कौन कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए. उसके बाद में एक्स्ट्रा जो चीज़ है, एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर कवर करता है JNU, वो चीज़ मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा. फर्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी के लिए जो बुक आप लोग फॉलो कर रहे हैं, सबसे अच्छा है वही बुक को फॉलो करके सबसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए जो आप पढ़े हैं. लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी के लिए स्टेलर एंड थॉर्नबेरी वन ऑफ द बेस्ट बुक इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट आप बोल सकते हैं. एंड क्लाइमेटोलॉजी के लिए बहुत अच्छी बुक है, लेकिन मैं उतना फॉलो करने के लिए अभी इस मौका में नहीं बोलूँगा. DS लाल बहुत अच्छी बुक है फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन, नॉट फॉर द डिटेल स्टडी. एंड आप लोग और भी कर सकते, बेरी चोले भी फॉलो कर सकते हैं. ओशनोग्राफी के लिए शर्मा भटल, बायोजियोग्राफी के लिए PD शर्मा एंड NC दास, इकोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी सब कवर हो जाएगा इसमें. इकोनॉमिक जियोग्राफी के लिए लियोंग एंड मॉर्गन का बुक बहुत अच्छे, इसको फॉलो कीजिएगा. पॉलिटिकल जियोग्राफी के लिए मॉडल्स इन जियोग्राफी माजिद हुसैन का है, जो नॉर्मली UPSC का लोग भी फॉलो करते हैं. ये बुक फॉलो करेंगे, थोड़ा सा कवर हो जाएगा. और थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो RL द्विवेदी का एक बुक है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं. उसके बाद पॉपुलेशन जियोग्राफी MK प्रेमी का बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं ह्यूमन सेटलमेंट के लिए.
एंड अर्बनाइजेशन का जो छोटी छोटी सब्जेक्ट मैटर है जो कवर करता है, वो सुमिता घोष बोल के एक बहुत बहुत पतली किताब है जो आप लोगों को बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सुमिता घोष का इजीली अवेलेबल है। रिमोट सेंसिंग के जीआईएस के लिए मैं बेसिकली बोलूँगा, रिमोट सेंसिंग के लिए लिलिस एंड कैफर सब लोग ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत डिटेल में मत चले जाएगा। इतना डिटेल में एमए के लिए एटलीस्ट उतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप बेसिक जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर किया है तो लिलिस एंड कैफर, एंड आप लोग और भी जो बुक फॉलो करते हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड, जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, चैंग का एक बुक है जो छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया है। लास्ट में मैं आ रहा हूँ कि जो जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज़ प्रैक्टिकल जियोग्राफी एंड द स्टैटिस्टिक्स, जिसके लिए मैं इस पॉइंट में खड़े होकर मैं ये बोलूँगा कि आप लोग आशीष सरकार फॉलो कीजिए। आशीष सरकार स्टैटिस्टिक्स के ऊपर एंड प्रैक्टिकल जो कार्टोग्राफी, मैप प्रोजेक्शन एंड द स्केल, इसके ऊपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उनको, जो यहाँ के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा आप लोगों को शायद। तो बेसिकली यही ब्रॉडली आप लोग फॉलो कीजिएगा। मास्टर्स के लिए बोल रहा हूँ, ब्रॉडली फॉलो कीजिएगा। लास्ट थिंग मैं बोलूँगा कि इवन पॉपुलेशन के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आता है, अर्बनाइजेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है जो रिसेंट फिनोमेना के ऊपर आता है, ठीक है। तो इसके लिए सेंसस ऑफ इंडिया एक्सटेंसिवली उसका डेटा देता है। इवन 5 ईयर प्लान, रिसेंट कॉन्फ्रेंस जो होता है, इवन एनवायरनमेंट के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुआ, आईपीसीसी का क्या एजेंडा था, इवन एसडीजी का क्या एजेंडा था, कौन कौन सा एसडीजी 17 गोल है तो कौन कौन सा गोल में क्या बोल रहे हैं, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा रिसेंट करेंट जो कंटेम्पोररी जो फिनोमेना हो रहा है, इसको थोड़ा सा आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो ब्रॉडली यही एमए के लिए यही सिलेबस वाइज जो था सिलेबस में है, उसका रेफरेंस बुक के हिसाब से मैं बोला। अब बात है कि जो आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे शायद कि कैसे एमसीक्यू अभी के सिचुएशन में कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। अभी का सिचुएशन में सबसे स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट वे मुझे अभी इस पोजीशन में ये लग रहा है कि आप लोग जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ईयर है जेएनयू एंट्रेंस का, या इवन जियोग्राफी के लिए एक बुक भी मिलता है जेएनयू का लाइब्रेरी के पीछे जो जौहर बुक स्टोर है, इवन बाहर जेएनयू का बाहर है वहाँ पर भी मिलता है वो। तो बहुत कम प्राइस है उसका, 100 के आसपास में प्राइस होगा, लेकिन वो जो बुक है उसमें लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है, ओके। और रिसेंट 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है, पहले आप हर क्वेश्चन है उसका आंसर अच्छे से जहाँ से आपको मिल रहा है वो आप लोग देख लीजिए और उसको राइट डाउन कीजिए, लिख लीजिए। आप टाइम कम है तो जितना राइट डाउन करेंगे तो उसको ज़्यादा याद रख पाएंगे। लेकिन मैं और एक सजेशन दूंगा कि ऐसे नहीं कि एक बार ही उसको सॉल्व कीजिए। एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आप लोग 2-3 बार, हो सके 4 बार भी उसको सॉल्व कीजिए। तो उसमें क्या होगा कि आपको विल गेट टू नो कि व्हाट इज़ द एरिया, कि आपको कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन एक्चुअली पिक कर रहा है। तो जेएनयू का एंट्रेंस थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे यूनिवर्सिटी से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने जो बोला कि करंट जो फिनोमेना है, करंट सिनेरियो है, उनके ऊपर भी देता है। तो आप लोग एटलीस्ट उसको हिट कर पाएंगे कि कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन पिक कर रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट है कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू भी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें एमसीक्यू भी है, सब्जेक्टिव भी है। तो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है पहले वाला, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। 15-20 क्वेश्चंस आता था एमसीक्यू, तो वही एमसीक्यू इसमें भी होगा, लेकिन होल पेपर आपका एमसीक्यू हो जाएगा। लेकिन आपको वो आइडिया मिलेगा कि कौन से एरिया से वो क्वेश्चन पिक किया। वो क्वेश्चन जब आंसर आप सॉल्व करेंगे, जरूर ये कीजिएगा कि जो बुक का नाम बोला मैंने, कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो उस क्वेश्चन का आप पीछे जाके वो बुक में पूरा डिटेल उस एरिया को कवर कीजिएगा। तो उसमें क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन कल आया था वो आज भी आएगा, लेकिन बात ये जरूर है कि उस एरिया से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन आए, सबसे बेस्ट यही होगा जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया उस क्वेश्चन को ले जाके आप बुक में जाके पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए या उस टॉपिक को पूरा कवर कर लीजिए, ठीक है। तो ये एक होगा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा इसमें
कि बहुत सारा सिलेबस आप लोग फॉलो कीजिए, ऑनलाइन अवेलेबल है जो एंट्रेंस का। तो बहुत सारा चीज़ ऐसे आपको लग सकता है, इवन क्वेश्चन पेपर जब फॉलो करेंगे बहुत सारा चीज़ ऐसे लगता है डायरेक्ट आपको बुक में नहीं मिल रहा है। उस टाइम क्या करेंगे, बुक में जब नहीं मिल रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारा इवन बहुत वास्ट भी होता है बुक में लिखा हुआ है, उसको आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पोर्शन को आपको पिक करना चाहिए। तो उसमें क्या करेंगे कि आप डायरेक्ट गूगल में चले जाइए। गूगल में जाके केयरफुली, लेकिन इसमें थोड़ा केयरफुली आपको रेफरेंस देख के गूगल में आपको आंसर ढूंढिए, लेकिन मोस्टली मिल जाता है गूगल में, लेकिन केयरफुली, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको केयरफुली गूगल में जो आंसर दे रहा है थोड़ा सा रेफरेंस देख लीजिएगा आंसर का। लेकिन मोस्टली क्या होगा कि आप जब गूगल में कुछ चीज़ टाइप करेंगे छोटा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, जो आपको पूरा बुक पढ़नी पड़ेगी दूसरे के लिए, दूसरा अगर बुक में जाएंगे कभी कभी। लेकिन हर चीज़ के लिए गूगल मत कीजिएगा, जो चीज़ आपको बुक में मिल ही नहीं रहे उस चीज़ के लिए आप यू कैन सर्च इन द गूगल। ओके, So this was the detail about the books which you have to prefer for the examination, and additionally he told that you can prefer the, if you are not getting in a book, you can prefer net, but carefully. I want to know something else, because the pattern is changed and now this time is a computer based. ओके, ओके, So this is a very important thing for the people who are preparing. Someone, because who are coming from the BA, they even some area they don't know how to handle their computer. So what is your suggestion to them? Because it is a very difficult. First you have to ओके, आई think about. ओके, ये क्वेश्चन में ये थोड़ा सा बाद में आंसर देता हूँ। ठीक है। जो सेकंड पोर्शन है मैं थोड़ा सा उसको डिस्कस कर देता हूँ कि जो इवन एमफिल पीएचडी के लिए क्या करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट यू नो फॉर द एमए एंट्रेंस, दोज हु आर एस्पिरेंट फॉर द एमए इन जेएनयू इन सीएसआरडी। सो एमफिल और पीएचडी के लिए भी दो मैं थोड़ा सा बहुत ब्रीफ में बोलूँगा। ब्रीफ में क्योंकि बहुत सारे टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। पहले जियोग्राफी के लिए कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद में पॉपुलेशन और डेमोग्राफी के लिए बोलूँगा। क्योंकि डेमोग्राफी और पॉपुलेशन में ओनली मैं एमफिल में बोल रहा हूँ, इसीलिए हमारा सेंटर में मास्टर्स में नहीं है, ओनली एमए जियोग्राफी है। तीनों सब्जेक्ट है लेकिन ओनली एमए में जियोग्राफी है। बाकी इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी एमफिल से स्टार्ट होता है, एमफिल पीएचडी है। सो इकोनॉमिक्स में मैं नहीं बोल पाऊँगा। मैं डेमोग्राफी को हाईलाइट इसीलिए करना चाह रहा हूँ कि जो जियोग्राफी के स्टूडेंट है वो भी बैठ सकते हैं। मेरा भी जियोग्राफी बैकग्राउंड था, लेकिन मैं डेमोग्राफी और पॉपुलेशन स्टडीज़ में पीएचडी कर रहा हूँ। तो आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर चुके ऑलरेडी, तो इसमें प्रिपरेशन आप उस तरह से कर सकते हैं। सो आप जियोग्राफी का जियोग्राफी का एंड डेमोग्राफी का अगर सिलेबस देखेंगे आप, तो पहले सिलेबस और अभी का सिलेबस एमफिल पीएचडी में थोड़ा सा डिफरेंट है। सिलेबस में एमए का ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन इसमें डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसीलिए नहीं कहूँगा मैं, पहले अब सेग्रीगेट कर दिया, एकदम डिफाइन कर दिया कि ये पोर्शन आएगा, लेकिन पहले इतना सेग्रीगेशन नहीं था। जो ऐड किया वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का अलग पोर्शन किया, जो पहले नहीं था। सब्जेक्ट मैटर पहले था, रिसर्च मेथोडोलॉजी का थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आता था, लेकिन इतना एक्सटेंसिवली नहीं होता था जो अभी एक्सटेंसिवली। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो हम लोगों को भी आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग आइडिया है, एक्सपीरियंस है, उससे हम थोड़ा सा सजेशन दे सकते हैं कि जियोग्राफी जो एमफिल पीएचडी है उसमें दो पार्ट है बेसिकली, ए और बी पार्ट। ए पार्ट में आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, फुल्ली रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा। बी पार्ट में आपका फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी एंड रीजनल डेवलपमेंट। तो मोस्टली मैं बुक का रेफरेंस दे ही चुका हूँ, जो एमए के लिए, एमफिल के लिए भी सेम रेफरेंस है। लेकिन एमफिल में पीएचडी में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होगा, जो एक्सपीरियंस का, मैं नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही होगा, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा हो सकता है इसी सेम टॉपिक में, सेम फिजिकल, ह्यूमन एंड रीजनल डेवलपमेंट। लेकिन रीजनल डेवलपमेंट पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसमें एमफिल में भी, क्योंकि ये थोड़ा हर जगह उतना ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा इस एरिया में, क्योंकि रीजनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फोकस होता है इधर। अब क्या है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में इसमें मैं 2-3 बुक का नाम रेफ़र कर देता हूँ, क्योंकि इसमें जितना है हर चीज़ में डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, इतना शॉर्ट टाइम है यहाँ पर। बेसिकली आप लोग कार्टोग्राफी
रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस, हाइड्रोलॉजी, सोशियो इकोनॉमिक सर्वेइंग, ये सब चीज़ बहुत है इसमें। तो मैं मोस्टली आप लोगों को बोलूँगा 2-3 बुक आप लोग फॉलो कर लीजिए, तो इसमें पूरा तो कवर नहीं होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा कवर हो जाएगा। और पूरा कवर करने के लिए 2-4 बुक आप लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा। रिसर्च मेथोलॉजी जो है आप उसके लिए CR कोठारी का बुक जो है, एक दूसरा राम आहूजा एंड सेज पब्लिकेशन का क्रिस ऑयल का, ये 3 बुक आप लोग थोड़ा फॉलो कर लीजिए। तो आपका जो सैम्पलिंग मेथड, सर्वेइंग मेथड, ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और जो पहले MA के लिए मैंने बोला था, जो स्टैटिस्टिक्स के लिए और कार्टोग्राफी के लिए, वो बुक आप लोग स्टैटिस्टिक्स के लिए फॉलो कीजिए। इसमें स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे वो कोरिलेशन तक वहाँ पर सीमित था, लेकिन इसमें रिग्रेशन और भी एडवांस टेक्निक आ सकता है। तो आप लोग इसीलिए थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स को भी थोड़ा सा एडवांस लेवल में थोड़ा सा पढ़िएगा इसमें। और रिमोट सेंसिंग, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस, हाइड्रोलॉजी के लिए मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा, ये टेक्स्ट बुक ऑफ हाइड्रोलॉजी, पी जयराम रेड्डी का, जयरामी रेड्डी का एक बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ हाइड्रोलॉजी। फिजिकल जो पार्ट है, जो फिजिकल बेसिकली जो रिसर्च मेथोलॉजी में फिजिकल जियोग्राफी के लिए जो पार्ट है, उसके लिए मैं एक बुक बोला है पी जयरामी रेड्डी। एंड अदर बुक में मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस के लिए सब लोग फॉलो करते हैं, लेकिन नॉर्मली ये सजेशन में नहीं होता है। तो अभी शॉर्ट टाइम के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। सविंदर सिंह का जियोमॉर्फोलॉजी का जो बुक है वो नॉर्मली बाकी बुक से थोड़ा अच्छा है, तो इसीलिए उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं उस बुक को मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस के लिए। बाकी मैप प्रोजेक्शन, स्केल, ये सब चीज़ बहुत अच्छे से देखिएगा। बाकी सैम्पलिंग टेक्निक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर जो बहुत पूछते हैं, तो ये सब चीज़ आप लोग इसमें फॉलो कर सकते हैं। और बाकी जो जियोग्राफी का जो आपका मेन जो थीम बोला मैंने, फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, रीजनल डेवलपमेंट, इसके लिए आप लोगों का जो मास्टर डिग्री का सिलेबस है, जो भी यूनिवर्सिटी एग्जिस्टिंग हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट यूनिवर्सिटी में बहुत एक्सटेंसिव सिलेबस है, लेकिन उसमें आप लोग जो भी पढ़ा है उसको, जो भी सिलेबस में है उसको टैली कीजिएगा थोड़ा सा एंट्रेंस का सिलेबस के साथ। और उसमें ज़रूर देखेंगे कुछ पोर्शन आपका उस सिलेबस में नहीं है, और कुछ बहुत सारा चीज़ मैच होगा लेकिन कुछ पोर्शन मैच नहीं होगा। तो मैं उस थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ कौन कौन सी चीज़ आपको मैच नहीं हो रहा है, वो चीज़ आप लोग ज़रूर उसमें पढ़िएगा। और ये हो सकता है कि इंटरनेट के थ्रू भी पढ़ सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। लाइक मैं इसमें जैसे देख पा रहा हूँ कि इंक्लूसिव एक्सक्लूशन, एक्सक्लूसिव इंक्लूशन, ग्लोबलाइजेशन, नेचुरल रिसोर्स, चेंजिंग स्पेशल डिवीजन ऑफ लेबर, ये सब चीज़ डायरेक्ट आपको एकदम डायरेक्ट बुक में नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ थोड़ा सा आप अगर इंटरनेट के थ्रू बहुत सारा आर्टिकल मिलेगा, रिसर्च आर्टिकल मिलेगा, उससे आप आइडिया बहुत अच्छे से मिल जाएगा, बहुत शॉर्ट में, कम टाइम में बहुत अच्छे से आपको इस सब चीज़ में आपको मिल जाएगा। एनीवे, मैं सेकंड में आता हूँ, जियोग्राफी यहीं पे ख़त्म करते। अब डेमोग्राफी जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा मैं बोलूँगा MPhil PhD के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद इस बार सीट बहुत ही कम है, और शायद नहीं भी, ऐसे भी हो सकता है। तो मैं बहुत ब्रीफ में बोल देता हूँ इसको कि ये फर्दर काम में आएगा कोई अगर हाँ, तो इस थोड़ा सा कर देता हूँ। तो मैं 2-3 बुक का नाम बोल देता हूँ। बेसिक डेमोग्राफिक टेक्निक, के श्रीनिवासन का एक बुक है, जिसमें बहुत अच्छे से डेमोग्राफिक टेक्निक को एक्सप्लेन किया है। MK प्रेमी का सिंपल वो एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल डेमोग्राफी, जो पहले भी MK प्रेमी का नाम बोला मैंने, तो सेम बुक यहाँ पर भी आएगा। और पॉपुलेशन हैंडबुक, पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो से एक बहुत शॉर्ट में ओनली कॉन्सेप्ट बोलता है, आप उन लोग वो डॉक्यूमेंट्स को यूज कर सकते हैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन के लिए। और मैं इसमें थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ क्या क्या चीज़ आता है इसमें। पॉपुलेशन जो स्टडीज़ एंड डेमोग्राफी में बेसिकली 3-4 पार्ट में हम लोग फोकस करते हैं, फर्टिलिटी, मोर्टालिटी, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, एंड द अदर थिंग ऑल्सो, अदर थिंग्स आर देयर। मैं आपका जेंडर, फूड सिक्योरिटी, ह्यूमन इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ भी आता है। बहुत लिमिटेड है, लेकिन आपका
जब पढ़ेंगे बहुत भास्ट लगेगा, लेकिन ये बहुत जियोग्राफी की तरह बहुत ज़्यादा हेड नहीं है इसमें, लेकिन हाँ जब पढ़ेंगे थोड़ा सा ज़्यादा ही ये करना पड़ेगा, शायद आपको मेहनत करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आप जब जियोग्राफी से आएगा उसकी बैकग्राउंड जियोग्राफी का होगा, लेकिन इसमें जब काम करेंगे तो थोड़ा सा हाँ मेहनत करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो डेमोग्राफिक टेक्निक एंड एप्लीकेशन के श्रीनिवासन का बोला मैंने, उसमें आपको फर्टिलिटी मोर्टालिटी का जो डेमोग्राफिक टेक्निक यूज करते हैं, जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना, मोर्टालिटी रेट, फर्टिलिटी रेट, तो ये सब चीज़ जो इवन जो थोड़ा सा एडवांस लेवल में ये सब चीज़ आपको जानना जरूरी है पॉपुलेशन में यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन आता है इस तरह का। लेकिन बेसिक जो आपका नॉलेज है वो क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो ये 2-3 बुक से आपको क्लियर होगा। और जो टेक्निक जो बोला मैंने, वो डेमोग्राफिक टेक्निक जो बुक है उससे आपको नॉलेज मिल जाएगा। और बहुत अच्छे से यहाँ पर जो करना पड़ेगा, पॉपुलेशन थ्योरी जो है, माइग्रेशन थ्योरी, अर्बनाइजेशन का थ्योरी, ये सब चीज़ जो है आप लोग थोड़ा सा अच्छे से, बहुत सारा थ्योरी आता है, जो बुक मैंने बोला उसमें भी बहुत सारा कवरेज दिया है, इवन इंटरनेट में भी आपका बहुत सारा ये थ्योरी का पूरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, तो आप लोग उसको कवर कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो बहुत ज़्यादा मैं इसमें फोकस नहीं कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि शायद बहुत सीट्स का ये नहीं है। और रिसेंट इवन इसमें डेमोग्राफी और एक चीज़ है कि रिसेंट जो डेवलपमेंट बोलता हूँ मैं, कि पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस हुआ, इवन बुकारेस्ट कॉन्फ्रेंस, कायरो कॉन्फ्रेंस, ये सब चीज़ जो है कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा फोकस्ड करके पढ़ाया भी जाता है, क्योंकि उसके बाद पूरी वर्ल्ड वाइड जो पर्सपेक्टिव है रिसर्च का वो भी चेंज हुआ है, डेवलपमेंट का, इवन द कंट्री डेवलपमेंट भी चेंज हुआ है, तो वो सब चीज़ थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। सेकेंड चीज़ इसमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल न्यू आया है, तो इसको बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। पॉपुलेशन का बहुत सारा जो थीम है वो रिलेटेड है, डायरेक्टली लिंक्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। एंड पॉपुलेशन में इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ द डेटा सोर्स। कहाँ से इंडिया में हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, बहुत सारा रिपोर्ट आता है, हम लोग बोलते हैं ना, सेंसस से, NFHA से, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सेंसस ऑफ इंडिया, NSSO, इस तरह का बहुत सारा आपका डाटा सोर्स है। बहुत 2-4 मैंने बोला, इस तरह का डाटा सोर्स बहुत अच्छे से पूछते भी है, पढ़ाए भी जाते हैं, आपको नॉलेज भी होना चाहिए। अब आता है आपका क्वेश्चन में, जो कंप्यूटर बेस्ड है अभी, और जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उन लोगों को कैसे समझ में, जो एक्चुअली अवेयर नहीं है उसको कैसे ये करना चाहिए। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स तो हम नहीं बता पाएंगे, कि जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, इवन एक्सेसिबिलिटी नहीं होगा, उन लोग एकदम ऑल ऑफ ए सडन ये हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों का कोई मॉक टेस्ट हो सकता है इंटरनेट में, या आपका साइबर जो आसपास का साइबर कैफ़े है उसमें जाके कोई भी इंटरनेट में अगर मॉक टेस्ट टाइप हो सकता है, NTA करवा रहे हाँ, ये जो NTA करवा रहे तो अप्लाई रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ, रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड आपका यूट्यूब में मैं बोलूँगा हमेशा कि NTA का जो एक इसका वीडियो जरूर होगा, 6 मिनट का। तो आप, मैं रिक्वेस्ट आपको भी करूँगा, थोड़ा सा लिंक नीचे दे दीजिएगा कि उसमें इन लोगों को ये आइडिया मिले कि एटलीस्ट कहाँ क्लिक करना हो, कहाँ नहीं क्लिक करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलत क्लिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका आंसर सही है, आप सब कुछ पता है, उसके बाद भी आप ये हो रहा है कि आपका मार्क्स नहीं आया। टाइम मैनेजमेंट तो थोड़ा सा मैं बोलूँगा, थोड़ा सा ये सब चीज़ जो डिस्कस किया, इसके बाद भी थोड़ा सा टाइम निकल के आप टाइम स्पेंड कीजिए इसमें, कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि आप पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा अगर आप उसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे। जो आप लोग जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उसमें आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए उसमें, कंप्यूटर की कैसे चलाते हैं, इवन माउस कैसे, जो माउस में पहली बार हाथ दे रहा है, आप माउस में हाथ दे, साइबर कैफ़े में जाके माउस में हाथ दे के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कैसे होगा। तो ये सब्जेक्ट मैटर के बाहर है, लेकिन ये थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट रहिएगा जो भी एग्ज़ाम दे रहा है आप लोग, बिकॉज कोई भी एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, लेकिन कॉन्फिडेंट रहना भी ज़रूरी है उसमें, कि आप ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा होता है।
ये तो डिटेल में इन्होंने सब कुछ बता दी। एनटीए के बारे में थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि एनटीए जो कंप्यूटर बेस्ड करा रहा है उसमें इसने ऑप्शन दिया है कि आप रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। जेएनयू वेबसाइट पे आके ही आपको मॉक टेस्ट का भी उसने आपके आसपास के एरिया में उन्होंने रखा है। अगर आपके पास हो आपका सब्जेक्ट तो वो उसे आप ज़रूर जाइए। और अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं आप तो एनटीए के साइट पे ही जाएंगे तो कुछ मिनट का वीडियो आपको मिल जाएगा कैसे हैंडल करना है। वैसे ही इसके बारे में जो जेएनयू ने दिया है वो कंप्यूटर बेस्ड का पूरा डिटेल, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। अच्छा, अगर चाहे तो आप उसको भी देखें और उसको देख के आपको सारी चीज़ें जो कैसे यूज़ करना है, लेफ़्ट राइट और कौन से बटन होंगे, किस कलर के होंगे, वो सारा मैंने डिटेल में वो चीज़ें दे दी। आप इसको बेगर देखे आप एग्ज़ाम में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आप उसका हो सकता है आपके टाइम मैनेजमेंट में आपको बिल्कुल गड़बड़ हो जाए या आप समझ ही नहीं पाए, टाइम लगे तो आपका कुछ मार्क्स हो सकता है कम हो सकता है। एक चीज़ मैं एमफिल के बारे में थोड़ा सा हाँ कि जो लोग आएंगे अभी इंटरव्यू भी देना होगा एमफिल के लिए, सिनॉप्सिस के बारे में थोड़ा सा कैसे तैयार करके लाए, किस टाइप के टॉपिक चॉइस करे वो अच्छा। मैं भी वही सोच रहा था कि शायद ये स्किप हो गया, शायद मेरा इसमें लिखा नहीं है। तो बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन एक स्टेप के बाद स्टेप है। पहले आप एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद फिर कैसे इंटरव्यू देंगे एंड प्रपोजल कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे तो प्रपोजल के साथ आना पड़ेगा। प्रपोजल मीन्स आप पीएचडी किस या एमफिल किस टॉपिक में करना चाह रहे हैं, उसको एक लिख के लाना पड़ेगा आपको। क्यों करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, वो सब चीज़ आपको लिख के लाना पड़ेगा। तो उसको पीएचडी या एमफिल प्रपोजल बोलते हैं। तो आप लोग तो थोड़ा सा आइडिया मैं देता हूँ कि इवन दोनों का मिक्स करके बोल रहा हूँ, जियोग्राफी एंड डेमोग्राफी, बिकॉज रिसर्च में आके ऐसे नहीं कि जियोग्राफी का ये रिसर्च है, डेमोग्राफी का रिसर्च है, ऐसे आप सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दोनों मिक्स्ड ही होता है। इवन इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इकोनोमेट्रिक्स एनालिसिस बहुत सारा होता है। एनीवे वो बात की बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये देता हूँ आपको, अवेयर करता हूँ कैसे सिनॉप्सिस होना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो अगर क्वालिफाई आप हो गए उसके बाद रिसर्च जो टॉपिक ले रहे हैं आप, रिसर्च जो टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, उसमें पहले आप जो भी आपका मन में आ रहा है कि इस टॉपिक में मैं काम करूँगा, इसमें टॉपिक प्रपोज करेंगे। फर्स्ट you have to have some research article on that particular topic. ओके, आप इंटरनेट में आपको ये बहुत सारा जर्नल से आपको आर्टिकल मिल जाएगा। आप बेसिक जो उसमें उस एरिया में आपका, इवन एक एग्जांपल देता हूँ, अर्बनाइजेशन का कोई भी टॉपिक आप लेते हैं तो अर्बनाइजेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पर जो सब्जेक्ट पढ़ने जाएंगे तब भी पढ़ेंगे, लेकिन जब रिसर्च प्रपोजल आप फ्रेम कर रहे हैं अर्बनाइजेशन थीम के ऊपर, तो अर्बनाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज एंड जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो आप प्रपोज कर रहे हो ओनली उसी को आप फोकस कर रहे हैं तो नहीं होगा, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में आएंगे तब देखेंगे कि उस एरिया में जो एक्सपर्ट प्रोफेसर बैठे रहेंगे तो उन लोग आप लोगों को उस एरिया से भी क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, तो आप क्या करेंगे, बहुत ओवर एंथुजियास्टिक नहीं होना चाहिए कि एकदम बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक में लेके आ गया, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए उस टाइम जाके आपको डिफेंड भी करना होगा उस बात को। और ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक जिसका होगा वही सिलेक्ट होगा। हमेशा होता क्या है कि आपका टॉपिक जो भी ले रहा है बहुत क्लियर होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए उसमें, और आपका क्लियरिटी होना चाहिए आप क्या करना चाह रहे, क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सामने वालों को समझाने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब प्रपोजल में क्या होता है कि जो भी आप करेंगे बहुत 2-3 चीज़ में थीम ये बता देता हूँ कि कैसे लिखना चाहिए, लेकिन हाँ अपना हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ ध्यान रखिएगा जब लिखेंगे, क्योंकि हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि मैं जो बोलूँगा ऐसे लिखना पड़ेगा। एक तो जो आप बोल रहे हैं रिसर्च प्रॉब्लम मीन्स जिस टॉपिक में आप काम करना चाह रहे हैं उसमें काम का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब प्रॉब्लम मीन्स आपका जो भी करना चाह रहे हैं उसका प्रॉब्लम मतलब क्यों करना चाह रहे हैं आप उस चीज़ को, उसको डिफाइन कीजिएगा कि आप प्रॉब्लम ऑफ द रिसर्च को बहुत अच्छे से डिफाइन कीजिएगा। उसके बाद लिटरेचर मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, लिटरेचर जो पढ़ेंगे आप, लिटरेचर पढ़ के आपका उस एरिया में आप जो काम करेंगे, ऐसे नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका काम क्यों इम्पोर्टेंट है
ये आपको डिफाइन करने के लिए रिसर्च गैप बताना होगा एग्जिस्टिंग रिसर्च से। ऐसे हो सकते हैं कि आप जो करना चाह रहे हो ऑलरेडी कर दिए है कोई, लेकिन आपका कौन सा वैल्यू एडिशन होगा, कौन सा चीज़ न्यू होगा, वो आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो रिसर्च गैप जरूर बोलिएगा। लिटरेचर सर्वे थोड़ा सा होना चाहिए, रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए, रिसर्च प्रॉब्लम, लिटरेचर गैप, लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर गैप, देन उस तीनों चीज़ से आपका रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम होना चाहिए। आप रिसर्च 4-5 क्वेश्चन आपका फ्रेम होना चाहिए, जो हॉट एवर, एक दो भी हो सकते हैं, 4-5 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो रिसर्च क्वेश्चन, आप जब क्वेश्चन पूछ लेंगे उसके बाद फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव फिक्स्ड हो। और इसमें बाकी और 2 पार्ट जो मैं बोलूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, केयरफुल रहिएगा। जो भी आप प्रपोज करेंगे बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि उसमें डाटा अवेलेबल है कि नहीं, वेदर इट इज सेकेंडरी और प्राइमरी। आप प्राइमरी करेंगे तो जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा, प्राइमरी यू विल बी एबल टू कंप्लीट द प्राइमरी सर्वे, कंप्लीट द रिसर्च बाय द प्राइमरी सर्वे। और जो सेकेंडरी से करेंगे तो कौन कौन सा सोर्स से, कहाँ से कौन कौन सा डाटा आता है, अवेलेबल है, अभी एग्जिस्ट करता है, वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। डेटा कहाँ से मिलता है, डेटा का जो डेटा आप बोलेंगे उस डेटा के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि उसका कैसे डेटा कलेक्ट किया, क्या क्या इंडिकेटर देता है उस डेटा सेट में। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट थिंग जो है आपका मेथोडोलॉजी में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे मेथोडोलॉजी मत बोल दीजिएगा जिसमें आप खुद ही क्लियर नहीं है। तो ये मेथोडोलॉजी आप लोग उस हिसाब से बोलिएगा जिस हिसाब से आप लोग खुद के पास वो क्लैरिटी है। और आप ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी थोड़ा बहुत हो जाएगा। और उसके बाद मेथोडोलॉजी बाद में जैसे आप एक्सेप्ट होगा आपका, अगर एडमिशन हो जाएगा, देन आप इधर एक्सटेंसिवली कोर्स वर्क होता है तो कोर्स वर्क के बाद और भी चेंजेस होगा आपका। लेकिन जो भी आप प्रपोज कर रहे हो उस टाइम पॉइंट में आपके पास क्लियरिटी होना चाहिए। मैं इतना ही बोलूँगा, जो भी पार्ट लिखेंगे आप बहुत क्लियरिटी के साथ, ऐसे नहीं कि इधर उधर से बस एक 4-5 पेज का बना दिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप क्लियरिटी के साथ जो भी बोलें कॉन्फिडेंस के साथ बोलिएगा तो सामने वाले भी आपसे, आपका आंसर से सेटिस्फाइड होंगे। तो इतना ही है इसमें। और Is there any criteria for how many pages? Is there अच्छा, any अच्छा। how many pages? And the second question is that what is the atmosphere when you are going for the interview to the facing the professors? ओके, पेजेस का तो मैं लिमिट नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि आपका टॉपिक, आप जो प्रपोज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। Minimum बहुत सारे टाइम क्या होता है कि प्रॉब्लम ऑफ द स्टडी को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा 2-4 पेज ही लग जाता है, किसी का 1 पेज में भी हो जाता है। तो डिपेंड कर रहा है कि आपका जो आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एकदम बहुत बड़ा ऐसे मत कीजिए 35-40 पेज 50 पेज का हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और एकदम छोटा भी नहीं होना चाहिए कि 2-3 पेज लेके आप आ गए जिसमें सब्सटेंस भी कम होगा, ऐसे नहीं। लेकिन हार्ड एंड फास्ट में रूल्स नहीं है इसमें कि ये नहीं बोलूँगा कि जो 10 पेज लिख के लाया अच्छा लिख के नहीं लिया, जो 20 पेज लाया बहुत अच्छा लिख के लाया, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जस्टिफाइबल आपका वो डॉक्यूमेंट्स में जो भी सब कुछ जस्टिफाइबल होना चाहिए, आपको एक्सप्लेन कर। लेकिन हाँ, अराउंड 10-15 पेज इज़ ओके, मतलब आप जो भी बोलेंगे इवन 10 पेज, विदिन 10 पेज भी बहुत अच्छे से आप उसको फ्रेम कर सकते हैं आप क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन क्लियरिटी के साथ करेंगे तो वो 10 पेज के अंदर भी हो सकता है। बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन था आपका द इंटरव्यू। ओके, तो इंटरव्यू हमेशा ही लक होता है। इंटरव्यू ये इवन जो मैं बहुत सारा लोगों को इस यूपीएससी का इंटरव्यू के बाद बहुत सारा एक्सपीरियंस में सुना हूँ लोगों के साथ, ऑल अबाउट लक होता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है हर इंटरव्यू में, जो यहाँ पर भी वो कॉमन है, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे मत सोचिएगा कि सामने वाले जो बैठे हैं आपसे कम जानते हैं। हर कोई हर जगह ये होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको ये फीलिंग देता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कभी। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है आप जो बोल रहे हैं। और एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा, आप जब इंटरव्यू में जाएंगे ये मत सोचिएगा, ये मैं हमेशा हर किसी को ही बोलता हूँ, तो इसीलिए सजेशन दे रहा हूँ कि इंटरव्यू में आपको लगेगा बहुत सारा लोग बैठे रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोफेसर बैठे रहते हैं। मेरे सेंटर में स्पेशली मैं जब आया था 18 प्रोफेसर बैठे थे, तो इट वाज रियली टफ फॉर मी, बट ठीक है,
ऐसा नहीं है मैं लेकिन जो सजेशन दे रहा हूँ इसमें ध्यान दीजिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जो भी सवाल पूछेंगे, जो भी आंसर आप करेंगे, आप कॉन्फिडेंट के साथ बोलिएगा और ऐसे मत बोलिएगा जो नहीं पता है उसको भी आप एक हिस्ट्री सुना दिया। ये कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है इसमें। तो आप जो बोल रहे अगर सही है, आपको कॉन्फिडेंट, तो बोलिए, बहुत अच्छे से बोलिए। जहाँ पर कॉन्फिडेंट आपका अच्छा है उसमें बहुत अच्छे से बोलिए, तो उसमें फिर दोबारा क्वेश्चन भी आएगा तो आपका एरिया में आएगा। सेकेंड चीज़ जो है, जो नहीं पता है वो आप क्लियरली बोलिए कि एकदम बिल्कुल नहीं आइडिया हो, क्लियरली बोलिए ये थोड़ा सा नहीं पता है आपको। अब जिसको मिडिल में है, थोड़ा थोड़ा पता है, उसको क्या करेंगे, विद द परमिशन, आप जो भी आपका प्रोफेसर है विद द परमिशन लेके आप बोलिए आप ट्राई कर सकते हैं। अगर परमिट कर रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए। आपका उसमें अच्छा है कि आप ट्राई कर रहे हैं, तो अच्छा सही भी बोल सकते हैं। इसमें तो 50-50 चांसेस है। तो बेटर ये है कि आप परमिशन लेके बोलिए, लेकिन गलत जिसमें कुछ नहीं पता आपको उसमें मत बोलिएगा। उसमें अच्छा है कि आप थोड़ा सा परमिशन लेके ट्राई करने के लिए बोलिए, मैं ट्राई कर सकता हूँ, ये अच्छा है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, JNU इज द प्लेस where accommodate all the sections of the people from anywhere in India. ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ है JNU का है। मैं खुद भी जब आया था, मैं बंगाली मीडियम में पढ़ा हूँ। ओके, मैं जब ग्रेजुएशन मेरा बंगाली मीडियम में था, तो मैं जब MPhil में यहाँ पर आया था तब मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था, इवन हिंदी भी उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, बीइंग ए बंगाली पर्सन आप लोग समझ ही गए होंगे मेरा हिंदी बोलने का तरीका से। तो एक चीज़ मुझे एहसास ये हुआ उस टाइम इंटरव्यू में कि मैं जब बोल रहा था, इंग्लिश में ट्राई किया बोलने का, बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा बात क्लियर नहीं हो पा रहा था। इवन हिंदी में भी हो रहा था क्लियर, लेकिन ठीक ठाक हिंदी में ही दिया मैंने इंटरव्यू। बाद में लास्ट में मुझे यहाँ तक भी मतलब ये बोल रहा था कि इवन बंगाली में अगर तुम बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। मतलब दिस वाज नॉट द केस, बंगाली में नहीं बोल सकते आप अदर लैंग्वेज में। बट बात में जो मैसेज है इसके थ्रू में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपका जो नॉलेज है वो आप बोलिए वहाँ पर जाके। आपका लैंग्वेज बैरियर के लिए आप कांस्टेंट आपको लिमिट मत कीजिए वहाँ पर जाके। तो ये एहसास उन लोगों को देना चाहिए, आपका भी वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि आपके पास जो नॉलेज है वो बाहर आया। तो JNU यही अच्छी खासियत ये बात है JNU का कि आपके पास नॉलेज होगा तो ज़रूर लेंगे, लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। तो आप नॉलेज जो है अच्छे शेयर कीजिए, कोई भी लैंग्वेज जो अंडरस्टैंडेबल है। ऐसे नहीं कि आप कोई भी लैंग्वेज आके बोलेंगे जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, लेकिन जो अंडरस्टैंडेबल है उसमें बोल सकते हैं। This was the detailed discussion with the scholar how to prepare for the geography. Is there anything at last you want to comment on this? Is there any in brief? ओके, ब्रीफ में मैं 2-3 बाकी सब्जेक्ट मैटर ये सब चीज़ अक्सर बोल दिया हूँ। मैं एक चीज़ जस्ट 2-3 सेंटेंस में बोलूँगा कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग इस बार थोड़ा सा देख लेते हैं पैटर्न। नॉर्मली हमारा मन में भी यही था कि इस बार थोड़ा पैटर्न देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे। तो मैं बोलूँगा कि ऐसा कभी मत सोचिएगा। मैं बोलूँगा कि ट्राई यही लास्ट ट्राई है, ये सोच के एग्ज़ाम हमेशा दीजिएगा। और आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे ये सोचिएगा कि ये सबसे अच्छा एग्ज़ाम देंगे, वो सोच के जाइएगा। इसी बार क्वालिफाई करेंगे ये सोच के जाइएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अच्छे से दे पाएंगे एग्ज़ाम। और ऐसे मत सोचिए इस बार एक्सपीरियंस लेंगे नेक्स्ट टाइम में करूँगा। तो उसमें क्या होता है नॉर्मली कि बहुत सारा इक्वेशन चेंज हो जाता है, आप उतना इंथु नहीं रहता। अभी मास्टर डिग्री करके आ रहे लोग तो बहुत ज़्यादा वो एंथुजियास्टिक होता है। अभी जस्ट पढ़ के आए तो वो रिकॉल करना बहुत आसान होता है, लेकिन 1 साल बाद बहुत सारे चीज़ चेंजेस हो जाएगा। तो जितना दिन बचा है बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, तो विल डेफिनेटली क्रैक द एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ द पीपल दोज हु विल बी सिट फॉर द एग्ज़ाम। ओके, तो एट लास्ट में आपको जो एडवाइस दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसका जब भी तैयारी कर रहे हो उसका ध्यान दीजिए, और हो सकता है ये आपके लिए गेम चेंजर के तौर पे हो जाए। तो इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। अपने गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।